Auzubillahiminashaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. If you are new to the channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so that you are updated with all the courses that we offer and all the videos that we upload. Today, I welcome you in this online research course for beginners. हमारे इस कोर्स का पर्पस है that we discuss all the basic research stuff that a beginner should know. Beginners से मेरा मतलब है it does not go with कि necessarily अगर आप undergraduate हैं तो आप beginner हैं. I know a lot of undergraduate students who are well advanced in their research skills. They have worked a lot and published a lot of research papers. And then I also saw a lot of postgraduate students who are beginning their research interest. So that's fine. If you are an undergraduate or a postgraduate, it doesn't matter. The thing is, if you are new to research, this course is for you. Because in this course, we are going to discuss a lot of basic stuff. And remember, this course will be followed by advanced stuff जहां हम एक पॉइंट को डिस्कस करके एक पूरा कोर्स डिजाइन करेंगे. But the purpose of this course is to give you a bird's eye view, a total picture, a holistic picture that what is research and how do you think and receive this research as a beginner, okay? So आइए देखते हैं आज के लेक्चर का कंटेंट क्या होगा. What are we going to actually discuss in today's lecture, okay? आज हम बात करेंगे what is research. Research है क्या? मतलब क्यों करनी चाहिए, होती क्या है, what is the meaning of research, okay? So we'll discuss the definition of research, what are the different types of research, कौन सी मुख्तलिफ तरह की researches होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, what are the different types of articles, research articles obviously, उनकी क्या क्या types होती हैं, how research is published. स्टूडेंट्स का एक बहुत इंटरेस्ट ये होता है कि हम जब रिसर्च करें तो जाहिर है उसे किसी अच्छे जर्नल में पब्लिश करें. सो वी विल डिस्कस कि रिसर्च पब्लिश कैसे होती है, व्हाट आर द मैकेनिज्म्स, किस तरह किसी भी रिसर्च को पब्लिश किया जाता है, एंड व्हाट आर गुड साइंटिफिक जर्नल्स. जब आप रिसर्च पब्लिश करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी रिसर्च किसी भी जगह भेज दें, कहीं भी पब्लिश कर दें. इट हैज़ टू बी अ गुड जर्नल. And in order to know what is a good journal, you should know what is a good journal, okay? So we'll discuss what is a good journal. And what is the citation of an article, what is an impact factor, how to begin the research. That's a very important question. अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे ये बहुत ज़्यादा सवाल, सबसे ज़्यादा सवाल ये करते हैं, सर हम शुरू कैसे करें, सर हम शुरू कैसे करें. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने शुरू कर दिया. आज आप हमारा ये लेक्चर देख रहे हैं, shows that you have already begun your research interest. आज के इस लेक्चर के बाद आपको रिसर्च का एक पूरा ओवरऑल आइडिया होगा and you will be able to start your own research, okay? We will see how. Then we will talk about plagiarism and what are research ethics and how to get funding for research. Research करने के लिए obviously funds चाहिए होते हैं, पैसे चाहिए होते हैं. So हम अपने इस कोर्स में इस बारे में भी डिस्कस करेंगे. मैं आज ऊपर से तमाम पॉइंट्स डिस्कस करते हुए आऊंगा. प्लेजियरिज्म, रिसर्च एथिक्स and funding for research will be discussed in tomorrow's lecture by Dr. Saqib Qureshi, who is joining me in this research course. So all the tops I will discuss today in detail, and then the last three will be discussed by Dr. Saqib tomorrow. उसके बाद you will have to sit down a test. आपका एक टेस्ट होगा और after you qualify the test, you will be awarded with a certificate. Okay? So let's now begin to answer all these questions. What do you think? आपके दिमाग में ये सारे questions थे इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले? अगर थे तो दिस इज राइट अप टू योर एक्सपेक्टेशंस एंड वी विल सी कि रिसर्च होती क्या है, रिसर्च करते कैसे हैं, रिसर्च शुरू कैसे करें, वगैरह वगैरह जैसे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. ओके, लेट्स बिगिन. नाउ व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च की I mean you will find hundreds of definition, Oxford definition, Cambridge dictionary, so dictionary definition. I have written down here a functional definition of research, which to me is very important. मेरा अब more than 20 years का research experience है. I've done my PhD, postdoc, I've published quite a lot of papers, okay? And I have acquired a lot of grants and I have done all sort of research things. So after all those years, I have this working definition, okay? Let's see what it is. And I always share this with my students. मैं अपने students के साथ ही share करता हूँ हमेशा. इसको पढ़ते हैं. इसका एक लफ्ज़ बहुत important है और एक लफ्ज़ आपका अभी समझना जरूरी है द बिगिनर लेवल, ओके? क्योंकि आज अगर बिगिनर लेवल पर ये अच्छे से समझ लेंगे तो बिलीव मी यू विल बी अ वेरी गुड रिसर्चर थ्रू आउट योर लाइफ, ओके? सो इट्स अ सिस्टमैटिक वे ऑफ, इट्स अ सिस्टमैटिक वे. पहला वर्ड क्या है? सिस्टमैटिक. इट्स नॉट रैंडम. रिसर्च ऐसे नहीं है बस मैं यूं जा रहा हूं और आज मैंने यूं देख लिया और यूं कर लिया. नो, इट हैज टू बी वेल प्लान्ड. It has to be systemic, okay? So it's a systemic way of
identifying a problem. Very beautifully written, you see. एक सिस्टम के थ्रू सबसे पहले आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है. इट्स आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम कि मैं रिसर्च जो करने जा रहा हूं वो किसी एक अच्छी चीज को एड्रेस भी कर रही है या नहीं. मतलब रिसर्च ये भी हो सकती है ऑब्वियसली कि मैं आज ये रिसर्च करना चाहता हूं कि आज मेरी यूनिवर्सिटी में मेन गेट से जो लोग एंटर हो रहे हैं उसमें से कितनों ने रेड कलर की शर्ट पहनी है, और आप सुबह से शाम तक वहां बैठ गए और आपने सबके कपड़े नोट कर लिए कि जी 81 लोगों ने रेड कलर की शर्ट पहनी थी, और उसके बाद शाम में आपके पास रिजल्ट्स आ गए. तो आपने रिसर्च क्या की कि यूनिवर्सिटी से एंटर होते हुए कितने लोगों ने रेड शर्ट पहनी है. बट मुझे बताएं कि इज दिस अ प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी? Is this something of high significance? If this is something very important for the nation, is this something which is addressing any disease? No. अगर 81 लोग रेड शर्ट पहन रहे हैं, I don't care. अगर 82 पहन रहे हैं, I don't care. Actually, nobody cares. So research has to identify a problem. आपके केस में it has to be a health care problem, okay? Because research जाहिर है फाइनेंस में भी होती है, रिसर्च बहुत सारे डिसिप्लिन्स में होती है, इंजीनियरिंग में होती है, बट सिंस इस वक्त मैं हेल्थ केयर रिलेटेड स्टूडेंट से मुखातिब हूँ सारे, आप किसी भी फील्ड में हो, बट दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, सिस्टमैटिकली आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. सो उन डिजीजेस के बारे में आपको रिसर्च करनी चाहिए जो डिजीजेस आपके मुल्क में बहुत कॉमन है. फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर, फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस, हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज. ये वो आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नेशन. सो सिस्टमैटिकली यू हैव टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम. रेड शर्ट पहनना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च. रिसर्च के लिए सबसे पहला मरहला यही है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, ओके, एंड देन फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस. उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके आप अपने दिमाग में एक हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं कि अच्छा ये यूं होता होगा. फॉर एग्जांपल कोई एक बीमारी है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, वो आइडेंटिफाई हो गया, आप सोचेंगे यूं होता होगा. अब ये चेक करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखने होंगे, मेथडोलॉजी डिफाइन करनी होगी, डेटा गैदर करना होगा, और फिर रिजल्ट्स आएंगे और रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन करनी होगी, फिर उससे कंक्लूजन्स ड्रॉ करने होंगे कि मेरे रिजल्ट से मुझे ये पता लगा, और फिर आपको सॉल्यूशंस प्रपोज करने होंगे कि मेरी रिसर्च में मैंने ये प्रॉब्लम देखा, इस प्रॉब्लम को मैंने ऐसे देखा, ये मेथडोलॉजी थी, ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स थे, ये मेरे रिजल्ट्स हैं, मैंने अपना डेटा इंटरप्रेट किया, इससे मैं ये सॉल्यूशन प्रपोज कर रहा हूं या कर रही हूं. एंड ऑल ऑफ दिस इज एविडेंस बेस्ड. एविडेंस बेस्ड मतलब मैंने रिसर्च करके साबित किया. सो दिस इज अ वेरी गुड वर्किंग डेफिनेशन ऑफ रिसर्च. अगर ये आपके दिमाग में आज से इनकल्टेट हो जाती है, आपके दिमाग में ये बैठ जाती है, बिलीव मी, अपनी पूरी जिंदगी यू विल बी अ वेरी गुड रिसर्चर्स. क्योंकि आप हमेशा बात करेंगे आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, आप हमेशा बात करेंगे हाइपोथेसिस बनाने की, आप हमेशा बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स लिखने की, आप हमेशा बात करेंगे मेथडोलॉजी लिखने की, आप हमेशा बात करेंगे रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कैसे करें, डेटा जमा कैसे करें, सॉल्यूशन कैसे प्रपोज करें. ये डेफिनेशन आपने छोड़नी नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूं इसका प्रिंट आउट लेके इस स्लाइड का अपने स्टडी टेबल पे, अपने क्लास बेंचेस पे, हर जगह लगा लीजिए. आपको पता होना चाहिए कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च जिससे आपको स्टिक करना है. ओके, सो दिस इज रिसर्च. व्हाट इज रिसर्च? आई टोल्ड यू आज की प्रेजेंटेशन में हम ये सारे क्वेश्चंस आंसर करेंगे. और पहला सवाल, व्हाट इज रिसर्च? नाउ यू नो व्हाट इज रिसर्च. ओके, नाउ क्यों करनी चाहिए रिसर्च? मतलब क्या जरूरत पड़ी है खामखा में बस टाइम लगाएं, मेहनत करें, वो कर रहा है मेरा दोस्त तो मैं भी कर लूँगा. अक्सर स्टूडेंट में मैंने ये भी देखा है कि मैंने पूछा है कई लोगों से ये सवाल कि भाई आप रिसर्च क्यों करना चाहते हैं, तो मुझे जवाब ये मिलता है कि सर वो मेरे वो कोलीग्स कर रहे हैं तो मैंने सोचा मैं भी कर लूँ. आपको पता होना चाहिए कि व्हाई यू आर डूइंग रिसर्च. जो भी काम आप कर रहे हैं वो आप क्यों कर रहे हैं. देयर शुड बी अ पर्पस टू इट. ओके, बहुत सारे रीजंस होते हैं रिसर्च करने के. बहुत से लोग कहते हैं एकेडमिक एक्सेलेंस, यानी हमारी सीवी पे अच्छा लगेगा, हमारी एकेडमिक ग्रोथ होगी, दोस्तों को बताएंगे, जॉब के लिए जाएंगे, बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव होगा, सो प्रमोशंस होंगी. फॉर एग्जांपल आपको अभी अगर नहीं पता तो आगे जब अपने कैरियर में आप एक्सेल करेंगे आपको पता चलेगा कि जब प्रमोशंस होती हैं उसके लिए पेपर्स चाहिए होते हैं. पेपर्स मतलब आपने कितनी रिसर्च पब्लिश की है. लेक्चरर के लिए कोई शायद कंडीशन इस वक्त नहीं है, बट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुछ पेपर्स चाहिए, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट बनने के लिए कुछ पेपर्स चाहिए होते हैं, इतना रिसर्च आपने पब्लिश कर रही हो ऑलरेडी, फिर फुल प्रोफेसर बनने के लिए कुछ पेपर्स की रिक्वायरमेंट है. सो अक्सर लोगों का टारगेट यही होता है कि जी मुझे पेपर इसलिए लिखने, रिसर्च इसलिए करनी है क्योंकि मुझे प्रमोशन चाहिए. प्रमोशन हो जाए उसके बाद मैं कसम खा के कह लेता हूँ कि मैंने कुछ नहीं करना, मैंने कोई रिसर्च नहीं करनी. ऐसे बहुत से माइंडसेट के लोग आपको मिलेंगे. तो कुछ लोगों का एकेडमिक पर्पस होता है, कुछ लोगों का जॉब की प्रमोशंस के हवाले से और एप्रिसिएशन के हवाले से कि बड़ी मेरी वाह होगी जॉब पर कि वाह यार क्या बंदा है, रिसर्च करता है, पेपर पब्लिश करता है. तो कुछ लोगों का ये पर्पस होता है.
कुछ लोग कैरियर के हवाले से कहते हैं कि जितने ज़्यादा पब्लिकेशंस होंगी, जितने ज़्यादा पेपर्स होंगे, जितनी ज़्यादा रिसर्च होगी, उतना कैरियर आगे तेज़ी से बढ़ेगा, कैरियर ग्रोथ उतनी ज़्यादा होगी। ये सब लेजिटिमेट रीजंस हैं, ये सब ओके रीजंस हैं, और ये अगर आपकी ज़िंदगी में है तो दे आर फाइन। बट मैं आज डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स के प्लेटफॉर्म से आपको एक रीज़न और देना चाहता हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है स्टूडेंट्स। ये मैं अपने 20 साल से ज़्यादा का जो मेरा रिसर्च कैरियर है उसका निचोड़ आपके सामने रख रहा हूं, एंड आई एम सो हैप्पी कि मुझे ये मौका मिल रहा है मैं ये आपसे शेयर कर सकूं, क्योंकि मैं यहां तक पहुंचा हूं कई सालों के बाद। मैं चाहता हूं आप आज शुरू यहीं से करें, और वो एक पर्पस जो आपकी जिंदगी में होना चाहिए रिसर्च का, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूडेंट्स, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अच्छी रिसर्च करें। रिसर्च करने से होता क्या है, आप नई इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, आप नया डेटा जनरेट करते हैं, आप नई साइंस जनरेट करते हैं। जनरेशन ऑफ न्यू नॉलेज इज रिसर्च, जनरेशन ऑफ न्यू नॉलेज इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जनरेशन ऑफ न्यू नॉलेज इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम नई इंफॉर्मेशन जनरेट करें ताकि कंट्रीब्यूट करें इस सोसाइटी की तरफ। तो भले ही आपके ये पर्पसेस हों, एकेडमिक, प्रमोशन, जॉब सेटिस्फैक्शन, कैरियर ग्रोथ, सब कुछ ठीक है, बट एक पर्पस जरूर रखिएगा अपनी लाइफ में रिसर्च का, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी फील्ड में रिसर्च करें और अपनी फील्ड से रिलेटेड नई मालूमात पैदा करें, उसे पब्लिश करें और दुनिया को बताएं कि ये नई इंफॉर्मेशन मैंने कंट्रीब्यूट की है। इससे आपका भी नाम ऊंचा होगा, आप कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे साइंस में। बहुत से लोग रिसर्च करते हैं। कंट्रीब्यूशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजर 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 फैक्टर होना चाहिए आपकी लिस्ट में। ये बात याद रखिए। मेरी लिस्ट में आज ये डाउन द लिस्ट नहीं है, मैंने लिखा आखिर में है, लेकिन मेरी रिसर्च का मेजर पर्पस, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहा था उस वक्त इतनी पब्लिकेशंस थी कि आई वाज एलिजिबल टू बिकम अ फुल प्रोफेसर। सो पब्लिकेशन मेरे लिए कभी प्रॉब्लम्स नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने काफ़ी अरसे से रिसर्च करता रहा, बहुत अच्छे सीनियर्स मिले, अच्छी जगह पर पब्लिश किया, पीएचडी के पेपर्स पब्लिश किए, पोस्ट डॉक से बहुत सारा काम। सो पेपर्स का नंबर, एप्रिसिएशन, ये सब मेरे लिए सेकेंडरी चीज़ें हैं। प्राइमरी चीज़ है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मैं अपनी जिम्मेदारी के तौर पे लेता हूं कि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं नई नॉलेज जनरेट करूं और अपनी कौम के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन छोड़ के जाऊं। और आप सबको भी मैं चाहता हूं, बिकॉज यू आर नाउ पार्ट ऑफ द डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स फैमिली, मैं चाहता हूं आप में भी ये स्पिरिट इसी तरह रहे। ओके, और इसकी एक एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करता हूं। 2015 में मैंने एक पेपर पब्लिश किया इंटरनेशनल बहुत अच्छे बड़े जर्नल में। वो पेपर था कैंसर रजिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान इज अ डायलेमा। होता यह है कि इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान में सबसे कॉमन कैंसर कौन सा है, तो उसका जवाब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई नेशनल सेंट्रल कैंसर रजिस्ट्रेशन सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा। अब जब वो काम नहीं कर रहा तो कितने केसेस हैं, कौन सा कैंसर कॉमन है, ये बताना बड़ा मुश्किल है। और लोगों ने ये किया है कि मुख्तलिफ जगहों पे, जैसे पंजाब में एक बहुत अच्छी कैंसर रजिस्ट्री बनी हुई है, तो पंजाब का डेटा वहाँ मौजूद है। कराची में यहाँ हम काम कर रहे हैं तो हमारा डेटा, लेकिन एक नेशनल जो डेटा है वो मिसिंग है। सो मैंने ये हाईलाइट किया था कि इट्स अ डायलेमा दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। हमारे मुल्क में एक प्रॉब्लम है कि नेशनल कैंसर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। ये मैंने इशू कब आइडेंटिफाई किया? आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। मैं आपको रिसर्च के स्टेप्स बता रहा हूँ। आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम कब मैंने आइडेंटिफाई किया? 2015 में इसे पब्लिश किया। देन सी व्हाट वी डिड। हमने 2016 में अपने इंस्टीट्यूट में एक कैंसर रजिस्ट्री बनाई और कैंसर के जितने कराची के केसेस थे उनको रजिस्टर किया और वो पब्लिश कर दिया कि जी कराची में इतने कैंसर के पेशेंट्स हैं। 2016 में एक रिपोर्ट पब्लिश की, 2020 में एक और रिपोर्ट पब्लिश की, और देखें जरा 2020 में एक और आर्टिकल क्या लिखा, रिवाइवल ऑफ कैंसर रजिस्ट्रेशन इन कराची। तो शुरू कहां से हुए थे? इट्स अ डायलेमा, यानी एक प्रॉब्लम है कि जी कैंसर रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रही, और एंड कहां पर किया? रिवाइवल, यानी अब हो रही है। नाउ वी आर हैप्पी टू अनाउंस कि कराची में कैंसर रजिस्ट्रेशन हो रही है। नाउ वी नो कि कौन से कैंसर कॉमन है, कौन से कैंसर कॉमन नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। सो वी स्टार्टेड विद द प्रॉब्लम, वी पब्लिश्ड अ फ्यू पेपर्स एंड नाउ वी अनाउंस दैट इट हैज बीन रिवाइव्ड, इट हैज बीन रिजॉल्व्ड। सो द पॉइंट ऑफ शेयरिंग दिस विद यू इज दैट ये आइडेंटिफाई करके मुझे सिर्फ ग्रोथ अपने कैरियर की या प्रमोशन नहीं लेनी थी। मैंने इसको अपनी जिम्मेदारी समझा। ये कैंसर रजिस्ट्री यहाँ बनाई, उसमें मेजर रोल अलग ज़ात ने मुझसे प्ले करवाया, और उसके बाद हमने इसको अब इस्टेब्लिश कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, एक मसले का हल। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आपके अंदर होगी तो आप माशरे में कंट्रीब्यूट करेंगे। ओके, सो ये स्लाइड दिखाने का मेजर पर्पस यही था कि मैं आपको इंस्पायर करने की कोशिश करूं कि आपने भी अपने लोगों को, अपने मुल्क को रिसर्च के जरिए कंट्रीब्यूट करना है। ओके, नाउ एक और सवाल था हमारी इनिशियल लिस्ट में जो शुरू में हमने बात की थी,
व्हाट इज गुड रिसर्च? गुड रिसर्च किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपसे कहा कि इट शुड एड्रेस इंपॉर्टेंट इश्यूज। ये नहीं हो कि एक शर्ट कौन सी पहनी है, शूज का कलर क्या है, वो खाता क्या है, वो पीता क्या है, मतलब फॉर अननोन रीजन। रिसर्च शुड हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। हेल्थ केयर में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं वो किसी ऐसी बीमारी पर हो कि जो आपका मेजर हेल्थ केयर बर्डन है। जैसे मैंने आपसे कहा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ये तमाम वो प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी सोसाइटी का मेजर प्रॉब्लम है। तो इन प्रॉब्लम्स पे रिसर्च इज वेरी गुड रिसर्च, ओके। बजाय इसके कि आप किसी ऐसी चीज पे रिसर्च करें जिसका कोई इंपैक्ट ही नहीं है, ओके। नॉलेज गैप शुड बी क्लियर। रिसर्च में ये बहुत जरूरी है। हम एक मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, देयर इज नो नीड टू री इन्वेंट द व्हील। यानी जो चीज अगर किसी ने पहले ही आइडेंटिफाई कर ली है, जरूरी नहीं है कि आप वो दोबारा रिसर्च करके बताएं कि उसने भी ए फॉर एप्पल बताया, मैं भी ए, नहीं। एक नॉलेज गैप आपको एड्रेस करना चाहिए। ये कैसे होगा? इसके लिए आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करने का सोच रहे हैं, आपको लिटरेचर सर्च करना पड़ेगा। क्या इस टॉपिक पर किसी और ने बहुत सारा काम कर रखा है? अगर कर रखा है और एग्जैक्टली वो सवाल जो आपके दिमाग में है उसका आंसर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपको वो रिसर्च दोबारा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां कोई नॉलेज गैप नहीं है, वहां पे नॉलेज आंसर हो चुकी है। और अगर एक दफा नॉलेज आंसर हो चुकी है तो उसको दोबारा रिसर्च करना रिसोर्सेज का ज़िया है। You are wasting resources and you don't have to do that, okay? So knowledge gap should be very clear. Research questions should be very clear. आप ये नहीं कह सकते जनाब आपको किस चीज पे रिसर्च करनी है, मैंने ब्रेस्ट कैंसर पे रिसर्च करनी है ना। ब्रेस्ट कैंसर पे क्या रिसर्च करनी है? आपको ब्रेस्ट कैंसर का मैकेनिज्म देखना है, आपको ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट देखनी है, आपको ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट का सर्वाइव, स्पेसिफिक एंड क्लियर रिसर्च क्वेश्चन। मैं यहां अक्सर लोगों से मिलता हूं, सेमिनार्स करता हूं, वर्कशॉप्स में जाता हूं, सवाल करता हूं कि जी टेल मी कि आपको क्या रिसर्च करनी है, आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है। और मुझे अक्सर ये जवाबात मिलते हैं, सर मैंने फलाने कैंसर पे रिसर्च करनी है, मैंने फलानी डिजीज पे रिसर्च करनी है, क्या करनी है क्लियर ही नहीं होता। सो क्लैरिटी शुड बी वेरी वेरी एट द टॉप ऑफ योर हेड कि आपने रिसर्च एक्चुअली करनी क्या है। और वो कैसे, मैंने आपको कहा कैसे पता लगेगा, अभी हम इसमें देखेंगे हाउ टू बिगिन रिसर्च। तो उसमें आपको ये पता लगेगा कि आपने ये कैसे एक्चुअली आइडेंटिफाई करना है कि मैंने रिसर्च करनी क्या है, ओके। हाइपोथेसिस शुड बी वेल डिफाइंड, ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी वेरी क्लियर। ऑब्जेक्टिव इतनी क्लियर होने चाहिए कि मैं इसकी एग्जांपल्स, जब मैंने आपसे कहा कि इन तमाम चीज़ों पर एक अलग अलग कोर्स हम डिज़ाइन करेंगे, हम ये डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट गुड ऑब्जेक्टिव्स। ये एक अलग कोर्स होगा कि ऑब्जेक्टिव्स लिखते कैसे हैं। हाउ टू राइट अ गुड रिसर्च क्वेश्चन, इस पर एक अलग छोटा सा कोर्स होगा। सो हम इस पर फर्दर कोर्सेज करेंगे। इस वक्त आपको मैं एक ओवरऑल पिक्चर दे रहा हूं कि रिसर्च बिगिनर्स के लिए ये सारे टूल्स और गैजेट्स जरूरी हैं, ओके। तो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, वेग नहीं होने चाहिए। आई विल डू सम सॉर्ट ऑफ रिसर्च ऑन ब्रेस्ट कैंसर, ये ऑब्जेक्टिव अच्छा नहीं है। ऑब्जेक्टिव ये अच्छा होना चाहिए, टू इन्वेस्टिगेट द रोल ऑफ CD3 पॉजिटिव T cells in breast cancer progression. That's a good objective. Well defined, crisp and clear. तो ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए। मेथोडोलॉजी बहुत अच्छी डिफाइंड होनी चाहिए। रिजल्ट्स मस्ट बी आपने जो काम किया है, अगला बंदा कभी अगर ये काम दोबारा करे तो वैसे ही रिजल्ट्स आने चाहिए, रिप्रोड्यूसेबल रिजल्ट्स। दैट इज अ गुड रिसर्च। अगर आपकी रिसर्च से कुछ और रिजल्ट आ रहे हैं, कोई और कर रहा है, कुछ और आ रहा है, कोई और कर रहा है, कुछ और आ रहा है, इसका मतलब आपकी मेथोडोलॉजी अच्छे से डिफाइंड नहीं है, आपके रिजल्ट्स अच्छे से लिखे हुए नहीं हैं। रिजल्ट्स मस्ट बी रिप्रोड्यूसेबल। जो उसको रिप्रोड्यूस करना चाहे वैसा ही करे और वैसे ही रिजल्ट्स आए, ये होना बहुत जरूरी है अच्छी रिसर्च की निशानी। Conclusions must be realistic and limitations should be well defined. Now conclusion should be realistic का मतलब ये है, अक्सर लोग अपनी रिसर्च के एंड में लिखते हैं कि जी मेरी रिसर्च से ब्रेस्ट कैंसर के तमाम इलाज पुराने खत्म हो गए और मेरा एक नया तरीका इलाज आ जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आपकी जो रिसर्च है वो एक बहुत बड़े डोमेन में एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो आपका क्लेम ऐसा होना चाहिए कि वी आर ट्राइंग टू हेल्प एंड वी आर ट्राइंग टू इंप्रूव द एग्जिस्टिंग थेरेपी। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप लिख रहे हो कि जी हमने तो ट्रीटमेंट नया ही दे दिया और हमने ये उखाड़ लिया और वो। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। योर कंक्लूजन्स मस्ट बी रियलिस्टिक। जो रिजल्ट्स आए हैं वैसे ही कंक्लूजन्स होने चाहिए, उससे ज्यादा क्लेम नहीं करना चाहिए आपको, ओके। एंड इट शुड बी वेल रेफरेंस। जो भी बात आप करें उसका कोई रेफरेंस आपने साइट करना है, हवाओं में बातें नहीं करनी। रेफरेंस साइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी जुमला आप लिखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल्स इन पाकिस्तान, अगर ये जुमला आप लिख रहे हैं तो नीचे उसका कोई रेफरेंस लिखें। किसी ने इस पे आर्टिकल पब्लिश किया होगा, उस आर्टिकल का रेफरेंस आपको देना है कि इस आर्टिकल के हिसाब से ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन पाकिस्तानी फीमेल्स। अपनी तरफ से कोई बात नहीं करनी कि मेरे ख्याल में यूं है, नहीं, आपके ख्याल की वैल्यू यहां पे नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आप उसका रेफरेंस साइट करें, ओके। तो ये तमाम स्टेप्स आपने याद रखने गुड रिसर्च के लिए। मैंने
आई ऑल्सो टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, हर एक पॉइंट पे एक वर्कशॉप डिजाइन हो सकती है, एक कोर्स डिजाइन हो सकता है, हम करेंगे भी। हम इनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे ऑब्जेक्टिव राइटिंग, रिजल्ट राइटिंग, कंक्लूजन राइटिंग, रिसर्च क्वेश्चन राइटिंग, इन पे अलग अलग वर्कशॉप्स रखेंगे। छोटी छोटी वर्कशॉप्स होंगी, ऑनलाइन वर्कशॉप्स होंगी, आपको टास्क देंगे, समझाएंगे कैसे ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं ताकि आप उसको मास्टर कर सकें। आज के कोर्स का मैं फिर बता रहा हूं पर्पस ये है कि ओवरऑल आपको एक पूरी पिक्चर दी जाए कि जी रिसर्च के लिए क्या क्या टूल्स चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। जैसे घर में जाते हैं ना बिरयानी बनाने के लिए, तो बिरयानी बनाने जाते हैं तो आपको पता है यार इसके लिए मुझे चावल होने चाहिए, चिकन अगर है तो चिकन होनी चाहिए, टमाटर होने चाहिए, इंग्रेडिएंट्स मौजूद हों। इंग्रेडिएंट्स होंगे तो कोई आपको सिखाएगा कि बिरयानी बनानी कैसे है। आज का लेक्चर वो तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको प्रोवाइड कर रहा है कि रिसर्च के लिए ये टूल्स, ये गैजेट्स, ये इंग्रेडिएंट्स जरूरी हैं। ओके, टाइप्स ऑफ रिसर्च, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ क्लासिफाइंग रिसर्च। ओके, इट कैन बी बेसिक एंड अप्लाइड। बेसिक रिसर्च वो होती है जिसमें आप सिर्फ मैकेनिज्म्स डायसेक्ट कर रहे हैं। अप्लाइड रिसर्च वो होती है जिसमें आप एक्चुअली कोई ट्रीटमेंट, पेशेंट की इंप्रूवमेंट, पेशेंट की डायग्नोसिस, तो जहां पेशेंट इन्वॉल्व हो गया वो अप्लाइड रिसर्च है। जो आप प्योरली लेबोरेटरी में कर रहे हैं जहां पेशेंट बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, बेसिक रिसर्च है, दैट्स अ बेसिक रिसर्च। देन क्लिनिकल रिसर्च है जिसमें आप अगेन पेशेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इन्फरेंशियल रिसर्च ये होती है कि जिसमें बहुत सारा डेटा पब्लिश्ड है, आप उस डेटा को देख के उससे नया मतलब निकालते हैं, नए इन्फरेंसेस करते हैं। ओके, देन ड्राई एंड वेट। ड्राई रिसर्च आजकल बहुत फेमस होती जा रही है। इसका मतलब अगेन ये है कि बहुत सारा डेटा जो ऑलरेडी पब्लिश हो गया है उसको बैठ के रिव्यू करें और उससे नए कंक्लूजन्स ड्रॉ करें। वेट रिसर्च का मतलब ये है कि आप लेबोरेटरी में खड़े हुए केमिकल्स के साथ काम कर रहे हैं। इन सिलिको रिसर्च का मतलब ये है कि आप कंप्यूटर और एल्गोरिथम्स और सॉफ्टवेयर की मदद से बहुत सारी रिसर्च। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स और हर रिसर्च का अपना एक पर्पस होता है। ये डिपेंड करता है कि आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है। आपके रिसर्च क्वेश्चन के हिसाब से आप तय करेंगे कि आपको किस टाइप की रिसर्च करनी है। ओके, अब जो आर्टिकल्स आप पढ़ते हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स विच यू रीड, जिन्हें हम साइंटिफिक आर्टिकल्स कहते हैं, उनकी बेशुमार टाइप्स हैं। वन इज कॉल्ड ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल। ओरिजिनल आर्टिकल का मतलब यह है कि आप जो डेटा पब्लिश कर रहे हैं ये इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया। दैट्स द फर्स्ट टाइम दैट यू हैव रिसर्च दिस, और ये पहली दफा आप रिपोर्ट कर रहे हैं। सो दैट्स एब्सोल्युटली समथिंग न्यू जो आप रिपोर्ट करने जा रहे हैं। इसका बहुत वेट होता है। और बाय द वे प्रमोशंस के लिए जो लोग वरीड होते हैं, प्रमोशन में यही काउंट होते हैं ओरिजिनल आर्टिकल्स, बाकी चीजें नहीं काउंट होती। ओरिजिनल आर्टिकल्स आर काउंटेड फॉर योर प्रमोशंस। ओके, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। रिव्यू आर्टिकल्स का मतलब यह है कि आपने दूसरे जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं उनको रिव्यू किया और अपना एक रिव्यू आर्टिकल लिखा। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ये देखना है कि जी ब्रेस्ट कैंसर के कौन कौन सी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो मैं वो तमाम आर्टिकल्स उठाऊंगा डेटाबेस से जिसमें ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट पर रिसर्च की गई है, और अब मैं एक रिव्यू आर्टिकल लिखूंगा कि इस आर्टिकल ने ऐसी ट्रीटमेंट बताई, इस आर्टिकल ने ये ट्रीटमेंट बताई, इस आर्टिकल ने ये ट्रीटमेंट बताई, और मेरा जो आर्टिकल अब तैयार होगा उस आर्टिकल का नाम होगा रिव्यू आर्टिकल। ओके, then there is meta-analysis. Meta-analysis is also a sort of review article, but it is more systematic. Okay, it's more complicated to write because इसमें काफी टेक्निक इन्वॉल्व है, लेकिन इसका वेट भी ज्यादा है। सो मेटा एनालिसिस अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत अच्छा एविडेंस पढ़ रहे हैं, बहुत सारे पब्लिश आर्टिकल्स का, क्योंकि साइंटिस्ट ने सिंपल रिव्यू नहीं लिखा, मेटा एनालिसिस लिखी है। तो मेटा एनालिसिस जरा टेक्निकल चीजों को और टेक्निकल तरीके से लिखी जाती है, तो उसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलती है। ओके, RCT इज द रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। बहुत से लोग ट्रायल करते हैं, आप आजकल सुन रहे होंगे कोविड के लिए बहुत सारी ट्रायल्स हो रही हैं, मुख्तलिफ वैक्सीन्स की ट्रायल्स हो रही हैं, मुख्तलिफ तरह की चीज़ों की ट्रायल्स हो रही हैं, मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स की ट्रायल्स हो रही हैं। सो कंट्रोल ट्रायल्स बहुत मायने रखती हैं मेडिसिन की फील्ड में, और इससे बहुत अच्छा डेटा निकलता है, और इसी ट्रायल्स की वजह से बहुत सारी ट्रीटमेंट्स आज हम यूज़ कर रहे हैं। हम जितनी भी ट्रीटमेंट्स यूज़ कर रहे हैं आज, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हों, चाहे वो पेन किलर्स हों, चाहे वो कोई भी ड्रग हो, वो सब ट्रायल्स के बाद ही अलाउ की जाती हैं ह्यूमंस को यूज करने के लिए। सो ट्रायल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट कम्युनिकेशन, जिसमें आप शॉर्ट पेपर लिखते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस इज अनदर टाइप, लेटर टू एडिटर, एडिटोरियल, शॉर्ट रिपोर्ट, कमेंट्री। सो दीज थीसिस, अगर आपने एमफिल किया है, पीएचडी किया है, या बाज लोग मास्टर्स में रिसर्च रिपोर्ट्स या थीसिस लिखते हैं, सो थीसिस भी एक तरह का पब्लिकेशन है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिकेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। अब हर आर्टिकल टाइप का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ओरिजिनल आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट होगा, इंट्रोडक्शन होगा, मैथडोलॉजी होगी, रिजल्ट्स होंगे, कंक्लूजन होगा, डिस्कशन होगा, रेफरेंसेस होंगे। हम, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि जब मेडिकल राइटिंग की और पब्लिकेशन राइटिंग की कोर्स करेंगे, इसका वर्कशॉप करेंगे, देन वी विल इन डिटेल डिस्कस कि जी इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है,
रिजल्ट्स कैसे लिखने हैं, मेथोडोलॉजी कैसे लिखनी है, सब पर हम अलग अलग बात करेंगे। लेकिन आज आपको बताने का मकसद ये था अगेन कि ये टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, हाउ इज द रिसर्च पब्लिश्ड। अब आपने कुछ रिसर्च कर ली, आपके पास डेटा है, आपने एक पेपर लिख लिया, उसको पब्लिश कैसे करें। जाहिर है वो आप किसी जर्नल में जमा कराएंगे। इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें आप किसी जर्नल में अपना आर्टिकल जमा कराते हैं और फिर वो आर्टिकल पब्लिश होता है, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है पीयर रिव्यू प्रोसेस। पीयर रिव्यू प्रोसेस का मतलब ये है कि फील्ड के एक्सपर्ट्स उस आर्टिकल को पढ़ते हैं। यानी जब आप जर्नल में आर्टिकल अपना जमा करा देते हैं, जर्नल के एडिटोरियल बोर्ड वाले उस आर्टिकल को कहीं भेजेंगे और एक्सपर्ट्स को भेजेंगे। जैसे मैं इस वक्त बहुत सारे इंटरनेशनल जर्नल्स में, नेशनल जर्नल्स में रिव्यूअर भी हूँ, एडिटर भी हूँ, तो उसमें हमारे पास बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं कि जी आप अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से जरा पढ़िए और बताइए ये आर्टिकल कैसा है। हम पढ़ के उस पर कॉमेंट्स देते हैं कि मेथोडोलॉजी ये ठीक नहीं है, इसमें ये सही नहीं है, इसको यूं सही कर लो, या अगर सही है तो बता देते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस कहलाता है पीयर रिव्यू प्रोसेस। इसके क्या क्या स्टेप्स हैं ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। पहला स्टेप है ड्राफ्ट द मैन्युस्क्रिप्ट। आपने मैन्युस्क्रिप्ट लिखनी है। अच्छा, हर जर्नल की रिक्वायरमेंट अलग होती है। कोई जर्नल कहता है मुझे एब्स्ट्रैक्ट लिख के भेजें आप जो 250 वर्ड्स का हो, उससे एक लफ्ज ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई जर्नल कहता है एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए 150 वर्ड्स का। बाज जर्नल्स कहते हैं टोटल आर्टिकल 2000 वर्ड से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 4 फिगर्स होनी चाहिए, 2 टेबल्स होने चाहिए। सो जब ये मैन्युस्क्रिप्ट आप ड्राफ्ट कर लेते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट आपकी तैयार हो जाती है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली होता है कि आपने जर्नल ढूंढना है कि किस जर्नल में आपने अपना आर्टिकल भेजना है। ये जर्नल ढूंढना बहुत जरूरी है। देखें, कहीं ऐसा ना हो कि आपका काम बहुत ही हैवी क्वांटम का हो और बहुत ज्यादा हैवी किस्म का काम आप किसी बहुत ही अनरिकग्नाइज्ड जर्नल में भेज दें, ये मुनासिब नहीं है। या वाइस वर्सा कि आपका काम बहुत ज्यादा ना हो लेकिन आप जर्नल को बहुत ही बड़ा सर्च कर रहे हैं, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। दैट्स ऑल्सो नॉट अ गुड आइडिया टू डू दैट। सो इसीलिए इफेक्टिव जर्नल सर्च बहुत जरूरी है कि आप एक अच्छा जर्नल ढूंढें और फिर अपने आर्टिकल को उस जर्नल के हिसाब से फॉर्मेट कीजिए। देखें, हर जर्नल की मैंने आपको बताया कि अलग रिक्वायरमेंट है। किसी जर्नल में ये होता है कि जी एब्स्ट्रैक्ट 250 वर्ड्स का हो, किसी में ये होता है कि एब्स्ट्रैक्ट 150 वर्ड्स का हो, बाज में इंट्रोडक्शन की वर्ड लिमिट होती है, बाज में होता है कि इतनी फिगर्स होनी चाहिए, इतने टेबल्स होने चाहिए। सो जर्नल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अब अपना आर्टिकल फॉर्मेट करना होगा, क्योंकि अब तक आपने अपना आर्टिकल लिखा हुआ है वर्ड डॉक्यूमेंट में और वो उस तरह से आपके पास सेव है जिस तरह आपकी अपनी फॉर्मेटिंग है। लेकिन अब जर्नल की फॉर्मेटिंग के हिसाब से आपको अपना आर्टिकल सेट करना होगा। सो ये फॉर्मेटिंग का स्टेप होगा। फिर आप जाहिर उस जर्नल में अपना आर्टिकल सबमिट करेंगे। अब आजकल यूजुअली वाया ईमेल सबमिट नहीं होता, अब सबमिट होता है वाया एन ऑनलाइन सिस्टम। उस ऑनलाइन सिस्टम में आप लॉग इन करते हैं, देन दे आस्क फॉर योर डिटेल्स, ऑथर्स के नाम पूछे जाते हैं और वो फिर ऑनलाइन आप फाइल्स अपलोड कर देते हैं और वो जर्नल में सबमिट हो जाता है, जिसके बाद यू हैव टू वेट। अब वो आर्टिकल जाता है एक्सपर्ट्स के पास रिव्यू के लिए कि जी इन्होंने ये रिसर्च की है, जरा आप इसको रिव्यू कीजिए कि इफ दिस रिसर्च इज अप टू द स्टैंडर्ड्स और नॉट। और जब वो रिव्यू कर लेते हैं तो उसके बाद दे गिव यू द कमेंट्स। उन कमेंट्स को फिर आप रिस्पॉन्ड करते हैं कि जी रिव्यूअर ने ये सोचा था तो हम इसको यूं कर लेते हैं, रिव्यूअर की बात यूं थी हम यूं कर लेते हैं। यूजुअली रिव्यूअर्स के कमेंट्स जरूर आते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि जर्नल बगैर रिव्यूअर्स के कमेंट्स को आपको कहे कि जी आपका आर्टिकल एक्सेप्ट हो गया है या आपका आर्टिकल रिजेक्ट हो गया है। जनरली दे सेंड यू रिव्यूअर्स कमेंट्स, एक्सपर्ट्स के कमेंट्स आपको भेजते हैं ताकि आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। अब ये सारा प्रोसेस कहलाता है पीयर रिव्यू प्रोसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये लास्ट स्टेप्स जो डील करता है सबमिशन एंड जर्नल कॉरेस्पॉन्डेंस, उसे कहा जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर, जो यूजुअली उस टीम का लीडर होता है, सुपरवाइजर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आई एम अ फुल प्रोफेसर इन माई यूनिवर्सिटी। सो मैं जब कोई आर्टिकल सबमिट करता हूं किसी जर्नल में तो मैं अपनी टीम के बिहाफ पे जर्नल के साथ कॉरेस्पॉन्ड करता हूं। आर्टिकल सबमिट करना मेरी जिम्मेदारी, जर्नल के जो कमेंट्स मुझे आएंगे उनका जवाब देना मेरी जिम्मेदारी, रिव्यूअर्स के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस मेरी जिम्मेदारी। ये सारा जर्नल के साथ जो कॉरेस्पॉन्डेंस है इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीम लीड, इसीलिए उसे कहा जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर। ओके, अब ये आपको आइडिया होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये सारा प्रोसेस कितना टाइम लेता है। मेरे पास अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं कि सर हमें बस 2 महीने में रिसर्च करा दें, 2 महीने बाद हमें कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि इट टेक्स अराउंड 6 to 8 months ओनली फॉर दिस प्रोसेस। मैं रिसर्च की बात इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा। रिसर्च 3 महीने, 4 महीने, 6 महीना, साल जो टाइम आपने रिसर्च में लगाया, उसके बाद पेपर लिखा, पेपर लिखने से लेके यहां तक का प्रोसेस 6 से 8 महीने है, वो भी तब व्हेन एवरीथिंग गोज वेरी वेल। कभी कभी ऐसे भी होता है कि जर्नल 6 महीने बाद आपको जवाब देता है कि योर आर्टिकल इज रिजेक्टेड, हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। फिर आपको वो अपना आर्टिकल किसी और जर्नल में जमा कराना होता है, यानी कि साइकिल दोबारा शुरू हो जाएगा। सो समटाइम्स इट टेक्स रियली रियली लॉन्ग टाइम टू गेट योर आर्टिकल पब्लिश्ड। इसीलिए ये आपको दिमाग में होना चाहिए कि
आपको नॉर्मल टाइमलाइंस पता होनी चाहिए कि अगर आपने कोई आर्टिकल पब्लिश करना है तो उसके लिए कितना टाइम पीछे आपको तैयार रहना है। 1 साल पहले रिसर्च करनी है, 6 से 8 महीने पब्लिश होने में लगेंगे। सो दिस ऑल शुड बी इन योर हेड। मेडिकल के स्टूडेंट्स अक्सर फाइनल ईयर में या हाउस जॉब में कहते हैं जी हमें रिसर्च करनी है क्योंकि हमें यूएसएमएल देना है, हमें स्टेप्स करके अब्रॉड जाना है। सो दैट्स नॉट अ गुड टाइम। अ गुड टाइम इज सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। वहां रिसर्च स्टार्ट कीजिए, रिसर्च बल्कि फर्स्ट ईयर आई वुड से, फर्स्ट ईयर से शुरू कीजिए ताकि फाइनल ईयर तक आते आते आपके पास 1-2 पेपर्स पब्लिश हो चुके हों, आप पूरे साइकिल से गुजर चुके हों। ओके, सो रिमेंबर ऑल दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉर पेयर रिव्यू प्रोसेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं सर अच्छा जर्नल कौन सा है, कौन सा जर्नल। अब ये अच्छा जर्नल कौन सा है ये जानना क्यों जरूरी है? ये जानना 2 रीजंस के लिए जरूरी है। नंबर 1, आपको आर्टिकल वहीं पब्लिश करना चाहिए जो अच्छा जर्नल है, पहला तो ये रीजन है। दूसरा, आपको आर्टिकल पढ़ना भी वही चाहिए जो किसी अच्छे जर्नल में पब्लिश हुआ है। यानी देखें, आपको बहुत से लोग रोजाना की बुनियाद पे बहुत सारे आर्टिकल्स भेजते होंगे, ये रिसर्च आर्टिकल पढ़ लो, वो रिसर्च आर्टिकल पढ़ लो। आप अपने आप से पूछें क्या हर रिसर्च आर्टिकल पढ़ने के काबिल है? इसका जवाब है नहीं। हर रिसर्च आर्टिकल डज नॉट क्वालिफाई अ गुड रीड। आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, आपकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है, इसमें जंक मत डालिए, बेकार चीजें मत डालिए। गुड क्वालिटी स्टफ आपको पढ़ना चाहिए, गुड क्वालिटी स्टफ आपको रिटेन करना चाहिए, गुड क्वालिटी स्टफ से आपका स्टैंडर्ड अपग्रेड होगा। और वो गुड क्वालिटी स्टफ क्या है? वो गुड क्वालिटी स्टफ इन 3 क्राइटेरिया को पूरा करना चाहिए। पहला क्राइटेरिया, वो आर्टिकल और वो जर्नल पबमेड पर होना चाहिए। आई विल टेल यू ये क्या है। उसका इंपैक्ट फैक्टर होना चाहिए और वो HJRS पर होना चाहिए। पबमेड एक वेबसाइट है, इट्स अ डेटाबेस जिसमें सारे साइंटिफिक आर्टिकल्स अपलोड होते हैं, अच्छे आर्टिकल्स। सो अगर कोई आर्टिकल पबमेड पे सर्च करने पे मिलता है, इट्स अ गुड आर्टिकल, पढ़ें उसको और उस जर्नल में अपना आर्टिकल पब्लिश करवाइए बिकॉज इट्स अ गुड जर्नल। अगर उसका इंपैक्ट फैक्टर है, इंपैक्ट फैक्टर अभी मैं आपको आगे बताऊंगा इंपैक्ट फैक्टर क्या होता है। इंपैक्ट फैक्टर थॉमसन रूटर ऑर्गेनाइजेशन है जो हर जर्नल के लिए कैलकुलेट करती है। जितना ज्यादा इंपैक्ट फैक्टर होगा उतना वो जर्नल अच्छा होगा। अगर किसी जर्नल का इंपैक्ट फैक्टर नहीं है, आई वुड बी अ लिटिल बिट शेकी कि उसका आर्टिकल पढ़ा जाए या उसमें आर्टिकल पब्लिश किया जाए। एंड लास्ट चीज, ये हमारे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के लिए है कि HEC ने, हायर एजुकेशन कमीशन ने एक वेबसाइट बनाई है। उस वेबसाइट में आप जर्नल का नाम डालें, अगर वो जर्नल का नाम वहां आता है इट्स अ गुड जर्नल, नहीं आता इट्स नॉट अ गुड जर्नल। ओके, इनको जरा डिटेल में देखते हैं। ये कैसे पता करें कि कोई जर्नल पबमेड पर है या नहीं? बहुत ही सिंपल, ये वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, आप टाइप करेंगे इसको जब अपने ब्राउजर में तो ये सर्च बॉक्स खुलेगा, इसमें जर्नल का नाम लिखें या आर्टिकल का टाइटल डालें। अगर वो आपको नजर आ जाता है इट्स अ गुड जर्नल, नहीं नजर आता इट्स नॉट अ गुड जर्नल। आपका जो टेस्ट होगा कुछ दिनों बाद इसी कोर्स का, उसमें मैं ये सवाल दूंगा, आपको एक जर्नल का नाम दूंगा और पूछूंगा क्या ये पबमेड पर है या नहीं है। तो आप जाके सर्च करेंगे, जर्नल का नाम नजर आएगा तो यस को क्लिक करेंगे, नहीं नजर आएगा तो नो को क्लिक करेंगे। तो ये आपके टेस्ट का हिस्सा भी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि जो आर्टिकल आप पढ़ रहे हो वो किसी अच्छे जर्नल में पब्लिश हुआ है या नहीं, या जिस आर्टिकल को आप सबमिट कर रहे हो, रिसर्च के बाद जमा करा रहे हो पब्लिश करने के लिए, तो किसी अच्छे जर्नल में जमा कराएं। पहला स्टेप, देखें क्या वो पबमेड पर है। दूसरा, देखें क्या वो थॉमसन रूटर की लिस्ट में है, क्या उसका इंपैक्ट फैक्टर है। इस वेबसाइट पे जाइए, अगर वो जर्नल नजर आता है तो यस उसका इंपैक्ट फैक्टर है, नहीं नजर आता तो उसका इंपैक्ट फैक्टर नहीं है। तीसरी चीज, HJRS की वेबसाइट पे जाइए, ये सर्च बॉक्स दिखेगा, जर्नल का नाम डालिए, अगर वो जर्नल नजर आता है तो वो इंपैक्ट फैक्टर जर्नल, वो रिकॉग्नाइज्ड जर्नल है। HEC की फिर डिफरेंट कैटेगरीज हैं, WXY कैटेगरीज। इन कैटेगरीज में W कैटेगरी आर्टिकल्स वो हैं जो सब इंपैक्ट फैक्टर वाले हैं, कुछ X में भी हैं। बट अगर वो आपको HEC की वेबसाइट पर नजर आ जाता है, इट मीन्स इट्स HEC रिकॉग्नाइज्ड जर्नल। बाय द वे, वो लोग जो प्रमोशंस के हवाले से सोच रहे होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि प्रमोशन के लिए यूनिवर्सिटीज में HEC रिकॉग्नाइज्ड जर्नल में पब्लिश होना जरूरी है। ये बहुत से सीनियर फैकल्टी मेंबर्स को पता भी नहीं होता, अपडेट नहीं होता, ये न्यू डेवलपमेंट है तो उनको मालूम नहीं होता। वो अपने वो आर्टिकल सबमिट कर देते हैं प्रमोशन के लिए जो एक्चुअली प्रमोशन के लिए एलिजिबल नहीं होते। In order to be eligible for promotion, your articles should be available and should be visible in a journal which is recognized by Higher Education Commission. तो समरी ये है कि किसी आर्टिकल के क्रेडिबिलिटी के लिए जरूरी है कि वो पबमेड पर हो, उसका इंपैक्ट फैक्टर हो और वो HJRS पर हो। अगर कोई आर्टिकल या कोई जर्नल इन तीनों क्राइटेरियाज को पूरा करता है, इट्स अ गुड जर्नल। यहां पब्लिश भी कीजिए और इनमें पब्लिश होने वाले आर्टिकल्स आप पढ़िए भी बिकॉज इट्स गुड क्वालिटी इंफॉर्मेशन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो अभी से अगर आपको ये आदत होगी अच्छी साइंस और अच्छी रिसर्च करने की, आप इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। साइटेशन किसे कहते हैं? नाउ साइटेशन इज समथिंग कि मैंने एक रिसर्च की, मैंने कहीं एक रिसर्च पब्लिश की,
कहीं अमेरिका में बैठे हुए, यूके में बैठे हुए किसी और साइंटिस्ट ने मेरी वो रिसर्च देखी, उसको अच्छी लगी, और उस शख्स ने जब वो अपना आर्टिकल लिख रहा है तो उस आर्टिकल में मेरे इस आर्टिकल का जिक्र किया, इसे साइट किया, इसे रेफर किया। सो दिस इज कॉल्ड साइटेशन। जितनी ज्यादा साइटेशंस होंगी वो आर्टिकल उतना ही अच्छा है। जैसे कि मेरा एक आर्टिकल है, दिस इज माय ओन आर्टिकल पब्लिश्ड बैक इन 2011, इसे 28 लोगों ने साइट किया अभी तक, यानी 28 लोगों ने कहीं पढ़ा होगा, इसे समझा होगा, अच्छा लगा होगा, उनकी रिसर्च से ये मिलता जुलता काम होगा, तो उन्होंने अपने आर्टिकल में इसका जिक्र किया। तो गूगल में इफ यू जस्ट टाइप इट टेल्स यू कि वो आर्टिकल कितने लोगों ने साइट किया है। साइटेबिलिटी इज एक्चुअली क्रेडिबिलिटी ऑफ योर आर्टिकल। ओके, देन व्हाट इज इंपैक्ट फैक्टर? हम कई देर से इंपैक्ट फैक्टर का काफी देर से बात कर रहे हैं कि जितना ज्यादा इंपैक्ट फैक्टर होगा उतना अच्छा जर्नल है। इंपैक्ट फैक्टर इज एक्चुअली द measure of average number of citations that an article get from a journal। यानी कोई एक जर्नल का आर्टिकल कितना ज्यादा पढ़ा जा रहा है और कितना ज्यादा साइट किया जा रहा है, उसे कहते हैं इंपैक्ट फैक्टर। जितना ज्यादा इंपैक्ट फैक्टर होगा वो जर्नल उतना अच्छा साइटेड जर्नल है, यानी लोग उसके आर्टिकल न सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि साइट भी करते हैं। ओके, और मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको बहुत अच्छे जर्नल्स की। NAJM, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, लैंसेट, इनके इंपैक्ट फैक्टर्स मोर देन 60 हैं, 60 से ज्यादा, वन ऑफ द हाईएस्ट इंपैक्ट फैक्टर्स। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू कि लैंसेट में मेरा अपना भी एक आर्टिकल पब्लिश्ड है। सो वी अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिश्ड इन लैंसेट व्हिच इज अ वेरी वेरी हाई इंपैक्ट फैक्टर जर्नल। और फिर ये नेचर और साइंस हैं जिनके इंपैक्ट फैक्टर मोर देन 40 हैं। सो ये साइंटिस्ट का ड्रीम होता है कि इन जर्नल्स में हम पब्लिश करें जिनके इंपैक्ट फैक्टर इतने हाई हैं, इतने हाई इंपैक्ट फैक्टर्स। ओके, पाकिस्तान में भी कुछ जर्नल्स ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनके इंपैक्ट फैक्टर्स हैं नॉट वेरी हाई, अराउंड 1 और समथिंग, बट वन जर्नल इज कॉल्ड पाकिस्तान जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज, द अदर वन इज JCPSP, द अदर वन इज JPMA। ये वो जर्नल्स हैं जो अच्छे जर्नल्स हैं, क्योंकि ये अच्छे जर्नल्स कौन से होते हैं? जो पबमेड पर होते हैं, जिनका इंपैक्ट फैक्टर होता है, और जो HGRS पर होते हैं। सो दीज आर ऑल ऑन दोज 3 लिस्ट। सो साइटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने उन्हीं जर्नल्स में पब्लिश करना है जो इन 3 क्राइटेरियाज को पूरा करें, जिनकी साइटेबिलिटी अच्छी हो, जिनका इंपैक्ट फैक्टर अच्छा हो। ओके, oh, it kind of takes me to this very important slide, how to begin। देखें, रिसर्च बिल्कुल ड्राइविंग की तरह है। रिसर्च ड्राइविंग की तरह देखने से नहीं सीखी जाती, करने से सीखी जाती है। सो ये सवाल आपके दिमाग में होगा और होना भी चाहिए कि सर हम शुरू कैसे करें, हम खुद रिसर्च कैसे करें? तो इसका मैंने एक पूरा डिटेल स्लाइड बना रखी है कि हाउ यू एक्चुअली स्टार्ट रिसर्च। ओके, आइए देखते हैं। पहला काम आपको क्या करना है? पहला काम आपको ये करना है, यू हैव टू फाइंड अ गुड मेंटोर। देखें, आप खुद अगर कोई टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, हो सकता है उस टॉपिक पे बहुत रिसर्च हुई भी हो ऑलरेडी, आपका एक्सपीरियंस अभी इतना नहीं है, हो सकता है आप एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हो सकता है आप एक गलत इशू आइडेंटिफाई कर रहे हो सकता है आपका रिसर्च क्वेश्चन ठीक ना हो, उसको गाइडेंस की जरूरत है। सो पहली चीज मेंटोर आइडेंटिफाई करें। हम ये प्रोग्राम बड़ा सक्सेसफुली यहाँ रन करते हैं मेरी यूनिवर्सिटी में। आई एम अ प्रोफेसर है और मेरे साथ बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अटैच्ड हैं, उनमें से बहुत सारे ये कोर्स इस वक्त ले भी रहे हैं मेरे साथ। दे जस्ट अप्रोच मी कि सर हमें रिसर्च करनी है, और हम उनको स्टार्ट से लेके चलते हैं। आइडेंटिफाई द क्वेश्चन, डिजाइन दी हाइपोथेसिस, मेथडोलॉजी, रिजल्ट्स, एंड देन वो पेपर सबमिट करते हैं, पब्लिश करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पब्लिश किया है हमारे साथ पेपर। सो जब आप इस पूरे साइकिल से गुजरेंगे, खुद करेंगे, तो सीखेंगे। एंड मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म से, डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स के प्लेटफॉर्म से आप सबको ये ऑफर कर रहा हूँ। आप सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नहीं है तो वो इस स्लाइड पे दिया हुआ है, मेरे चैनल पे मौजूद है, मुझसे राब्ता करें। जस्ट सेंड मी अ मैसेज, सर आई वांट टू डू रिसर्च, आप बताएं हम कैसे शुरू करें। हो सकता है मैं आपसे कोई मीटिंग का टाइम रख लूं और वी मीट अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड हम वहां से रिसर्च कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, एंड यू आर वेलकम। सो मैं चाहता भी यही हूं कि ये कोर्स जहां खत्म हो, एक्चुअली वो कोर्स वहां खत्म ना हो, वहां से आपकी रिसर्च शुरू हो, और वहां से आपकी रिसर्च इस तरह शुरू हो कि आप प्रैक्टिकली रिसर्च करें और करके सीखें। ये गैजेट्स तो मैंने आज आपको बता दिए कि जी बेसिक बिगिनर्स को ये चीजें पता होनी चाहिए, लेकिन अब करेंगे तो सीखेंगे। सो यू आर ऑल वेरी वेलकम। मेरी विश ये है कि आज जब ये लेक्चर खत्म हो तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहेंगे सर वी वांट टू मीट यू और हमें रिसर्च करनी है। इफ दिस हैपन, 10% स्टूडेंट्स भी मुझसे अगर कांटेक्ट करते हैं इस लेक्चर के बाद, देन माय कोर्स इज सक्सेसफुल, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। सो दिस, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है टू बिकम अ गुड रिसर्चर एंड टू कंट्रीब्यूट टू योर नेशन। सो आइडेंटिफाइंग अ गुड मेंटोर, when I say a good mentor, it's very important because mentor वो मत select कर लीजिएगा प्लीज जिसका रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है, जिसने कभी पब्लिकेशंस खुद भी नहीं की। आइडेंटिफाई समवन जो ये कर चुका है। ओके,
हमारे मजहब में भी ये है कि आस्क दोज हु नो इट, जिन्होंने ये किया है, जिनको पता है, उनसे पूछिए. सो आइडेंटिफाई अ गुड मेंटोर, जिनका रिसर्च एक्सपीरियंस है, जिनकी क्वालिफिकेशंस अच्छी हैं, एक्सपीरियंस है रिसर्च का, पब्लिकेशंस हैं मौजूद अच्छे जर्नल्स में. Contact those people, okay? So once you identify the mentor and topic selection, you do the literature search ताकि you identify the knowledge gap. आप लिटरेचर सर्च इसलिए करते हैं कि जो टॉपिक आप सोच रहे हैं कहीं उस पर औरों ने तो काम नहीं किया हुआ. अगर किया हुआ है तो क्या वो एग्जैक्टली सेम काम है? अगर एग्जैक्टली सेम काम है तो फिर कोई नॉलेज गैप नहीं मिलेगा. लेकिन अगर डिफरेंट काम है तो यू आइडेंटिफाई द नॉलेज गैप, और उस नॉलेज गैप के हिसाब से आप अपना रैशनल रिसर्च क्वेश्चन और मेथडोलॉजी बनाएंगे. So it's very important. Number one, identify a good mentor, get in touch with the mentor, decide a topic. Topic decide करने के बाद literature search के बाद identify the knowledge gap कि जी मैं करने क्या जा रहा हूं, ये पता है, ये नहीं पता, ये मैंने contribute करना है, इसके लिए मुझे ये मेथडोलॉजी करनी होगी, इसके लिए मुझे ये ऑब्जेक्टिव्स लिखने होंगे, एंड दिस इज हाउ आई विल डू माय रिसर्च. ये सारे, ये वो कहते हैं ना, ये वो कारून का खजाना है, ये वो कुंजी है, ये वो चाबी है, दैट इज द की जिसको यूज करके आप अपनी रिसर्च की वर्ल्ड का दरवाजा ओपन करेंगे. सो दिस इज इट. Identify the mentor. I'm more than happy to help you. My team at Dr. Asif Lectures is always there for students. आपको interest है? Contact us and we will facilitate you in our best capacities. Okay? So this was it, guys. आज का lecture यही था जिसमें मुझे आपको research की basic skills, basic understanding, basic gadgets और basic tools के साथ introduce कराना था. आज के lecture के बाद आपको ये पता है कि कौन सा जर्नल अच्छा है, आपको ये पता है कि रिसर्च होती क्या है, आपको ये पता है कि रिसर्च के स्टेप्स क्या हैं, रिसर्च की टाइप्स क्या हैं, रिसर्च शुरू कैसे करनी है, पब्लिकेशन प्रोसेस का पूरा एल्गोरिथम क्या है, पीयर रिव्यू प्रोसेस किसे कहते हैं. सो रिसर्च से रिलेटेड तमाम बेसिक चीजें यू ऑलरेडी नो. अब हम ये करेंगे नेक्स्ट कमिंग वीक्स में, कुछ छोटे छोटे कोर्सेज मजीद डिजाइन करेंगे ताकि आप कुछ स्किल सेट्स एक्वायर करते जाएं. फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू राइट ऑब्जेक्टिव्स, हाउ टू राइट मेथडोलॉजी, how to write results, how to write a research question, these type of things. And if you are interested in doing research, you are more than very welcome. आप हमसे राब्ता करें and we will entertain you. With this, I thank you very much for attending this lecture. Tomorrow, Saqib will discuss with you plagiarism, ethics, and research funding. And this will then be a complete package for beginners level research. Okay, you will know by tomorrow everything that you need to know for basic research understanding. Once again, I request you, if you have not subscribed my channel, please subscribe the channel and hit the bell icon so that you are updated with more upcoming videos and courses. Till then, Allah Hafiz. अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का, अपने माहौल का, सबका ख्याल रखिए. आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियोस में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.